بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی۔ آج جو ہم نے اسٹوری شروع کرنی ہے اس کا نام ہے پورا چاند بائے فاقرہ جبیں۔ بڑے صحن میں جھاڑو دینے کے بعد وہ دیوڑی میں پہنچی تھی جب کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اماں برآمدے میں چارپائی ڈالے سبزی بنانے میں مصروف تھیں۔ انہیں متوجہ نہ پا کر اس نے جھاڑو پھینکا اور دروازے تک چلی آئی۔ کون ہے؟ کنڈی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے رٹا رٹایا جملہ بولا تھا۔ ارے زیبی بیٹی، دروازہ کھولو گی یا یوں ہی باہر کھڑا رکھو گی؟ سکینہ خالہ کی جانی پہچانی آواز پر اس نے کٹ سے کنڈی گرا دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹی، کیسی ہو؟ سکینہ خالہ نے بڑی اجلت میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اس نے اپنائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے پوچھنا چاہا مگر وہ اپنی ہی دھن میں یہ جا وہ جا۔ اس نے غصے سے پیر پٹکے اور دوبارہ جھاڑو اٹھا لی۔ صفائی سے فارغ ہو کر اس نے منہ ہاتھ دھویا اور کچن کی طرف آ گئی۔ برآمدے سے گزرتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ سکینہ خالہ پوری کی پوری اماں کے کان میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھیں جبکہ اماں سبزی چوری ایک طرف رکھے ہمتن گوش نظر آ رہی تھیں۔ دونوں خواتین اسے دیکھتے ہی جھٹ سیدھی ہو گئیں۔ زیبی خالہ کے لیے چائے بنا لاؤ، اماں کے لہجے میں چاشنی ہی گھلی تھی۔ ہاں بیٹی، چینی ذرا زیادہ ڈال لینا۔ سکینہ خالہ نے اینک کے پیچھے سے سرتاپا اس کا جائزہ لیا تھا۔ زہر نہ ڈال دوں؟ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے ان کے مٹی سے بھرے جوتوں کو گھورا جو صاف ستھرے سرخ برآمدے میں نقش و نگار بنا گئے تھے۔ وہ اماں کے پاس سے سبزی اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ چائے کا پانی چولہے پر چڑھا کر اس نے ایک نظر کھڑکی سے باہر ڈالی۔ اماں اور خالہ سکینہ کی خسر پسر دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے پھر کوئی چکر شروع ہو گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر سر جھٹک کر چائے کپوں میں ڈال کر اماں اور خالہ سکینہ کو دی۔ دوپہر کے کھانے میں تو ابھی وقت ہے، میرا خیال ہے پہلے وہ رسالہ پورا پڑھ لوں، ورنہ اسد آج شام کو یوں ہی واپس لائبریری میں دے آئے گا۔ وہ چائے لے کر کمرے میں آ گئی اور ادھوری کہانی مکمل کرنے لگی۔ ہلکے سے کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے یوں ہی گردن گھما کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ننھا شہراز آنکھیں جھپکا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارے تم کب آئے؟ وہ جھٹ اٹھ بیٹھی۔ مما بھی ساتھ آئی ہیں؟ اس نے شہراز کو پیار کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اسے یوں ہی اٹھائے باہر آ گئی۔ کچن میں کھٹ پٹ ہو رہی تھی۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم بھابی۔ اتنے دنوں سے وہ اکیلی بور ہو رہی تھی۔ بھابی کو دیکھ کر ایک دم ہی اس کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ وہ کوئی 2 ہفتے بعد میکے سے واپس آئی تھیں تو یہ پہنچ گیا اپنی پھپھو کے پاس۔ شہراز کو اس کی گود میں دیکھ کر وہ مسکرائیں۔ پھپھو نائیں لالا۔ شہراز فوراً خفا ہونے لگا تھا۔ ہاں بھئی، لالا ہی صحیح۔ بھابی نے ایک ہاتھ میں فیڈر پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے شہراز کو اس سے لے لیا۔ میں نے تو کہا تھا چلو اب کچھ دیر سونے دیتے ہیں لالا کو، مگر یہ تو وہاں بھی سارے کمروں میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ بھابی اپنے کمرے کی طرف بڑھیں تو وہ بھی ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ ہاں بھئی، کیوں نہ ڈھونڈتا، آخر کو اس کی اکلوتی پھپھو ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ اماں کہاں گئی ہیں؟ اس نے ایک نظر باہر دوڑائی۔ جب میں آئی تھی تب تو ادھر ہی تھیں، میرا خیال ہے مرغیوں کو دانہ ڈالنے گئی ہیں۔ بھابی نے شہراز کو لیٹا کر فیڈر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اچھا پھر میں دیکھتی ہوں اماں نے ہنڈیا بنائی ہے کہ نہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ رہنے دو، میں دیکھ لیتی ہوں، شہراز ابھی سو جائے گا، تم اپنی نیند پوری کر لو۔ بھابی کو معلوم تھا وہ نیند کی کتنی شیدائی ہے۔ ارے بھابی، وہ تو رسالہ پڑھتے ہوئے یوں ہی آنکھ لگ گئی تھی، کھانا وانا کھا کر بعد میں نیند پوری کروں گی، وہ کہتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ اماں ہنڈیا پکا چکی تھیں۔ کمال ہے، میں اتنا دیر سوتی رہی، اسے خود پر حیرت ہوئی۔ وہ فریج سے آٹا نکالنے لگی کہ ابھی کچھ دیر بعد اسد وغیرہ نے آ کر شور مچانا شروع کر دینا تھا۔ اٹھ گئی ہے میری بنو، اماں نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو وہ کھجل سی ہو گئی۔ اماں، میری تو بس یوں ہی ذرا آنکھ لگ گئی تھی، آپ نے اٹھایا ہی نہیں مجھے۔ اچھا روٹیاں بنا کر انڈوں کا حلوہ بھی ساتھ بنا لینا، اماں نے دیسی انڈے باسکٹ میں رکھتے ہوئے کہا اور خود فریج سے دھنیا ہری مرچ نکالنے لگیں۔ یہ لے اماں، منہ میٹھا کریں۔ بھابی مٹھائی کا ڈبہ لیے کچن میں آئی تو اماں کے ساتھ ساتھ وہ بھی چونک گئی۔ اچھا روٹیاں بنا کر انڈوں کا حلوہ بھی ساتھ بنا لینا، اماں نے دیسی انڈے باسکٹ میں رکھتے ہوئے کہا اور خود فریج سے دھنیا اور ہری مرچ نکالنے لگیں۔ یہ لیں اماں، منہ میٹھا کریں۔ بھابی مٹھائی کا ڈبہ لیے کچن میں آئی تو اماں کے ساتھ ساتھ وہ بھی چونک گئی۔ یہ کس بات کی ہے بھائی؟ اماں نے برفی کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ سہیل کی بات پکی کر دی ہے اماں۔ بھابی نے کنکھیوں سے اماں کو دیکھا اور پلیٹ میں مٹھائی نکالنے لگیں۔ زیبی نے ایک نظر اماں کو دیکھا، منہ کی طرف جاتا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ کس کے ساتھ؟ اماں کے لہجے میں اشتیاق مفقود تھا۔ ابو کے جاننے والے ہیں، لڑکی کا باپ انسپیکٹر ہے، پورے علاقے میں دھاک جما رکھی ہے انہوں نے، بھابی خوشی خوشی بتانے لگی۔ لڑکی بھی اتنی پیاری ہے، گوری چٹی لمبا قد، بھابی بتا رہی تھی اور وہ چپ چاپ اماں کا بجھا بجھا چہرہ دیکھتی رہی۔ دوپہر کھانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو اماں منہ سر لپیٹے پڑی تھیں، بھابی بھی اپنے کمرے میں آرام کرنے جا چکی تھیں۔ اماں ایسی کیوں لیٹی ہیں؟ اس نے پاس بیٹھتے ہوئے ان کا دوپٹہ ذرا سا ہلایا۔ ویسے ہی، اماں کے کہنے پر وہ گہری سانس لے کر رہ گئی، جانتی تھی وجہ کیا ہے۔
मुझे मालूम है आपको क्या हुआ है, उसने धीरे से कहा। अम्मा की तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो झिंझला गई। अम्मा, सुहेल कोई दुनिया का आखिरी लड़का तो नहीं ना, जो आप उसकी मंगनी पर इस तरह अफसुर्दा नजर आ रही हैं? अम्मा ने चेहरे से दुपट्टा उतारकर उसे देखा। ये बात नहीं है ज़ेबी, मुझे तो दुनिया के चलन पर हैरत हो रही है। अरे, जिस दिन मेरा शाहिद नौकरी पर लगा था, मैं फौरन भाई के घर पर झोली फैलाई चली गई थी कि चार चार जवान बेटियां हैं, चलो कुछ तो बोझ हल्का हो जाएगा। मगर उन्हें देखो, इधर बेटा बरसरे रोजगार हुआ, उधर झट गैरों से मेल मिलाप शुरू। अरे, इन्हें जरा भी ख्याल ना आया कि जवान भांजी घर में बैठी है। अम्मा उठकर बैठ गई थी। ज़ेबी जवाबन क्या कहती, खामोशी से सर झुकाए बैठी रही और अम्मा दिल के फपोले फोड़ती रहीं। कहने को ये अपने हैं, अरे क्या फायदा ऐसे अपनों का जो अपनी जवान बच्चियों को छोड़ छाड़ बाहर झांकते फिरे। इधर वो सकीना है, हजार रिश्ते बताती है, मगर जरा जो ढंग के हों, जो जरा अच्छे रिश्ते लाती है, वो दरमियान में ही कहीं रह जाते हैं। अम्मा उकताई हुई थी। अम्मा, कोई रिश्ता वगैरह नहीं होता उनके पास, ख्वामख्वाह आपसे पैसे बटोरने के चक्कर में रहती हैं, और आप भी हर दफा उनके झांसे में आ जाती हैं। उसने अपनी दांत में अम्मा को हकीकत बतानी चाहिए, मगर अम्मा एकदम ही ताव खा गईं। अरे, तो और क्या करूं मैं, सारी उम्र यूं ही घर में बिठाए रखो तुम्हें। हाँ, तो किसने कहा था बिठा ले घर में, वो भी चिढ़ गई। अच्छा भला कहा था एमए में एडमिशन करवा दें, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, और हम अभी तक बीए के बाद ब्याह के इंतजार में बैठे हैं। वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई, जबकि अम्मा अपना सर थाम कर रह गई थी। बदतमीज, उल्लू, कमीने, घर में दाखिल होते ही उसे जितनी भी गालियां अजबर थी उसने सब दे डाली थी। शर्म नहीं आती इन लोगों को। सुबह से कमर टूट गई सफाई करते करते, मगर उसकी आवाज़ भर्रा गई। अभी कुछ देर पहले वो ये कमरा साफ करके दरवाज़ा बंद करके गई थी, मगर अब वहाँ चीज़ें बिखरी देखकर पारा आसमान तक जा पहुंचा था। नवाबजादे किचन में बैठकर नाश्ता नहीं कर सकते। उसने नाश्ते वाले जूठे बर्तन मेज से उठाए और फिर किताबों वाली अलमारी की तरफ बढ़ी। न जाने किस किताब की तलाश में ढेरों किताबें अलमारी से बाहर आ चुकी थीं। लगता है बीएससी नहीं पीएचडी करने जाते हैं। ये सारी कारस्तानी असद की थी। सो उसे ही गुस्सा गया। मून अपने गंदे कपड़े और स्लीपर यूं ही छोड़ गया था, लिहाजा उसे भी बेभाव की सुनाई। अम्मा चुपचाप उसकी बड़बड़ाहट सुनती रहीं। जानती थी कि असल गुस्सा भाभी के रवैये पर है, जो जानती थी कि आज देवी को कुछ लोग देखने आ रहे हैं, मगर उसके बावजूद सुबह से वो अपने कमरे में बंद थी। ज़ेबी ने दबे दबे लफ्जों में अम्मा से कहा भी, मगर उन्होंने हस्बे आदत उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि ख्वामख्वाह बदमज़गी पैदा हो। हाँ भाई, वो कब चाहती होंगी कि ये नंद कम मुलाजमा घर से रुखसत हो। इतने काम करने पर तो नौकरानियां हजारों रुपए बटोर लेती हैं। वो अंदर ही अंदर जलती भुनती रही। आगे पीछे तो मेरी गुड़िया, हमारी लाला, कहते कहते मुंह नहीं सूखता, और आज एक बार नहीं पूछा कि अगर कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ। ज़ेबी ने अलमारी के बट जोर से बंद किए। बेवकूफ़ों की तरह मैं ही सुबह से भागी फिर रही हूँ, जैसे मुझे बहुत शौक है रिश्ता करवाने का। उसने तमाम काम निपटाया और नहाने चली गई। असद ने अम्मा को मतलूबा सामान लाकर दिया और खुद कॉलेज रवाना हो गया। अब्बा और बड़े भैया को अम्मा ने खुद काम पर भिजवाया था, क्योंकि ज़ेबी ने साफ साफ कह दिया था, मैं अब्बा और बड़े भैया के सामने बन ठन कर मेहमानों के सामने पेश नहीं हो सकती। सो अम्मा ने सकीना खाला से कह दिया, फिलहाल खवातीन को साथ ले आए, लड़की पसंद हो तो बाद में बकिया फैमिली को इनवाइट कर लिया जाए। नहाकर उसने जरा बेहतर कपड़े पहने, क्रीम चेहरे पर लगाकर नेचुरल लिपस्टिक होंठों पर फेरी और गीले बाल सूखने के लिए यूं ही पुश्त पर खुले छोड़ दिए। किचन में आई तो अम्मा ने फौरन सरतापा उसका तनकीदी जायजा लिया। सादा सा रूप था, वो मुतमईन हो गई। लड़कियों का मेकअप करना उन्हें वैसे भी ज्यादा पसंद नहीं था। वो लिफाफे खोल खोल कर बाजार से मंगवाई चीजों का जायजा लेने लगी। इसी दौरान भाभी शराज को गोद में लिए आ गई। तोबा है, सुबह से ये लड़का तो मुझे उठने ही नहीं दे रहा था, अभी भी इतनी मुश्किल से बहला कर लाई हूँ। भाभी ने आते ही वजाहत की, हाँ भाई, बच्चा जो हुआ, जो मन में आएगा वही करेगा। अम्मा ने मुस्कुराते हुए शहराज को देखा, जबकि वो चुपचाप प्लेटों पर कपड़ा फेर कर उन्हें खुश करती रही। अम्मा, केक भी साथ मंगवा लेती। भाभी ने एक नजर सामने रखी चीजों को देखा। हाँ, केक भी है साथ, फ्रिज में रख दिया है, अम्मा ने कहा तो भाभी सर हिलाकर मुतमईन होकर वापस पलट गई। अरे, कोई है घर में? सकीना खाला की चहकती हुई आवाज सहन में गूंजी। अम्मा फौरन किचन से निकली। उधर ठक से भाभी के कमरे का दरवाजा खुल गया। 3 खवातीन थीं। अम्मा का तारुफ खाला सकीना ने करवाया और भाभी का तारुफ अम्मा ने। माशाल्लाह, वो तीनों खवातीन भाभी को सताइशी नजरों से देखने लगीं। फुल मेकअप में उनकी साफ रंगत मजीद निखर गई। मैरून लिपस्टिक में मोतियों जैसे दांत चमक रहे थे। आइए ना आप लोग, इधर आ जाइए। भाभी झट उन्हें लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। अम्मा के चेहरे पर खुशी का अक्स लहरा गया। दूसरे कमरे में बस एवं ही सा फर्नीचर था, जबकि इस कमरे में भाभी की जहेज का सामान सेट किया हुआ था। अच्छा हुआ नाइमा को खुद ही अकल आ गई, वरना दूसरे कमरे को देखकर इन मेहमानों पर कोई अच्छा असर ना पड़ता। भोली भाली अम्मा बहू की इस हरकत पर निहाल हो गईं। जरा देर बाद उन्होंने किचन में आकर जेबी को चाय लाने के लिए कहा। सलीके से दुपट्टा ओढ़कर चाय की ट्रे उठाकर वो अम्मा के पीछे ही चल दी। तोबा है, कितनी होंक लग रही होंगी मैं इस वक्त, उसने कमरे में दाखिल होते हुए सोचा, और अगले ही लम्हे वो ठटक गई।
नए कवर्स, नई बेडशीट, ट्यूबलाइट की रोशनी में भाभी की तरह उनका कमरा भी चमक रहा था। ये है हमारी जेबी, भाभी ने उसे देखकर फौरन कहा। उसने मेज पर ट्रे रखते हुए मेहमानों को सलाम किया। भाई सच्ची बात है, हमारे दरमियान नंद भावज वाला रिश्ता है ही नहीं, बहनों की तरह रखती हूँ मैं इसे, भाभी उन्हें बता रही थी। ज़ेबी चाय सर्व करने के बाद उठने लगी तो नौजवान लड़की ने, जो गालबन लड़के की बहन थी, फौरन उसे अपने पास बुला लिया। वो मुस्कुराते हुए उसके पास सोफे पर जा बैठी। मेरा नाम नवीदा है, उसने अपना तारुफ करवाया और हल्के फुल्के अंदाज में ज़ेबी की तालीम मशागिल के बारे में पूछने लगी। मुझसे छोटी ने हाल ही में एफए किया है। भाभी की बात सुनकर वो एकदम चौंक गई। भाभी से छोटी साइमा तो अरसा 3 साल से एफए करके घर बैठी हुई थी। एक से एक रिश्ता आ रहा है इसके लिए। अब्बू ने तो अभी से टीवी और फ्रिज खरीद कर रख लिया है। कहते हैं जहेज में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मेहमान खवातीन पूरी तरह भाभी की तरफ मुतवज्जा थी। उसने एक नज़र अम्मा की तरफ देखा जो उसे उठने का इशारा कर रही थी। वो चुपचाप उठकर बाहर निकल आई। भाभी की इतनी तैयारी की वजह उसे अब समझ आई थी। अभी उसे बाहर आए कुछ ही देर हुई थी कि खाला सकीना जूता घसीटती उसके पीछे चली आई। ए ज़ेबी, ये तुम्हारी भाभी का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो एकदम चौंक गई। क्यों, क्या हुआ खाला? वो जानबूझकर बेनियाज बन गई। अरे कोई घंटे भर से मेरा मेका, मेरी बहनें ये तकरीर किए जा रही है, ये कोई तरीका है भला? उसे तो चाहिए था तुम्हारी तारीफों के पुल बांध देती, अपनी सास के गुण गाती, मगर यहाँ तो उल्टा ही चक्कर चला हुआ है। उसने देखा सकीना खाला अच्छे खासे गुस्से में थी। मैं तो कहती हूँ ज़ेबी, मेहमानों को इस वक्त बुलाया करो जब तुम्हारी भावज अपने मैके गई हो। ऐसी कोई बात नहीं है खाला, भाभी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचती, उसने इत्मीनान से कहा। आय हाय, जैसी तेरी माँ सीधी वैसी तू, उन्होंने चिढ़कर कहा। अच्छा चल, जो तेरी किस्मत में होगा वो कोई तुझसे छीन नहीं सकता, ख्वाह कितने ही पापड़ क्यों ना बेल ले। सकीना खाला कहती हुई दोबारा कमरे में चली गई तो वो सर झटक कर रह गई। सबको मालूम है खाला, लेकिन दूसरों की खामियों पर पर्दा डालना मैंने अम्मा से सीखा है। उसने उठकर फ्रिज का दरवाजा खोला। और तुमने ही तो कहा था कि मेरी किस्मत में जो होगा वो मिलकर रहेगा, उसने सोचा और इत्मीनान से पानी पीने लगी। ज़ेबी जा बर्तन समेट ले। कुछ देर बाद अम्मा ने आकर कहा, मेहमान चले गए? हाँ। उसने एक नज़र अम्मा के उतरे उतरे चेहरे को देखा और बर्तन उठाने चली गई। भाभी शायद मेहमानों को रुखसत कर दरवाजे तक गई थी। वो सब चीज़ें समेट कर किचन में आई तो अम्मा गहरी सोच में डूबी हुई थी। अम्मा, आप यकीनन दुनिया के चलन पर हैरान हो रही होंगी। उसने चाय का कप अम्मा के सामने रखा और खुद भी वहां धरना मारकर बैठ गई। ये सामान समेट लो पहले, अभी बच्चे आ गए तो सारा कुछ चट कर जाएंगे। उसने अम्मा के कहने पर एक नज़र उन्हें देखा और बड़े इत्मीनान से बिस्कुट चाय में डिबो डिबो कर खाने लगी। एक दो तीसरे बिस्किट पर अम्मा ने घूर कर इसे देखा। मैं कह रही हूँ इन्हें संभाल कर रख लो, आइंदा काम आएंगे। किसके काम आएंगे अम्मा? हमारे या भाभी के? उसने तल्खी से कहा तो अम्मा एकदम खामोश हो गई। जानती थी वो भाभी से कितना प्यार करती है। अब उनके खुदगर्ज़ाना रवैये पर यकीनन उसे दुख तो पहुंचना ही था। मैं तो खुद हैरान हो रही हूँ ज़ेबी, सारा वक्त बस अपनी बहनों की तारीफ में रतुल लिसान रही। और तो और लड़के की अम्मा भी कह रही थी कि हमें तो तुम्हारी जैसी लड़की की तलाश थी। मेरा ख्याल है उन्होंने नाइमा के घर का पता भी लिया है उससे, अच्छा भला रिश्ता था। अम्मा दुखी हो रही थी। इसीलिए तो कह रही हूँ अम्मा, जिन लोगों ने रिश्ते करने हैं वो लोगों को अपने घर में बुलवाएं और अपना खर्चा करें। मैं तो अब इस घर में ये इतने महंगे वाले बिस्किट नहीं रखने दूंगी। इसने बिस्किट उठाकर अम्मा के सामने लहराया और मुंह में डाल लिया। अम्मा को महसूस हुआ वो उनसे ज्यादा खुद को बहला रही है। अरे ये अकेले अकेले दावत उड़ाई जा रही है। उसने हैरत से उन्हें देखा। असद ने हैरत से उन्हें देखा। नहीं मेरे भाई, तुम खुशी से इस दावत में शरीक हो सकते हो। उसकी फराक जलाना पेशकश पर वो वहीं पंजों का बल बैठ गया। वैसे क्या मैं पूछने की जिसारत कर सकता हूँ कि ये सारी चीजें अम्मा की तहवील में जाने के बजाय हमारी मुंतजिर क्यों हैं? असद के जहन में यही ख्याल उभरा था कि शायद मेहमानों की तरफ से कोई मुस्बत जवाब मिला है, वरना मुस्बत जवाब मिला है और वो इसी ख्याल की तस्दीक चाह रहा था। अरे तुम्हें मालूम ही नहीं? उसकी शदीद हैरत पर उसको अपनी कम इल्मी पर खासी शर्मिंदगी हुई थी। भाई तुम्हारी ये बहन बहुत भागवान हो गई है, उसने भाभी को किचन में आते देखकर कसदन बुलंद आवाज में कहा। हमारी बदौलत लोगों के बरसों से रुके हुए काम पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं। क्यों, है ना खुशी की खबर? उसने हंसते हुए असद की तायीद चाही, जबकि भाभी किचन के दरवाजे से ही वापस चली गई थी। अम्मा कितने ही दिन गुमसुम सी रही थीं। इस रिश्ते के खत्म होने का उन्हें बहुत कलक था और इसका इजहार वो वक्तन फ़वक्तन अब्बा के सामने करती रहती थीं। अब्बा दरवेश सिर्फ आदमी थे, इस किस्म की फिक्रें नहीं पालते थे, सो हर दफ़ा अम्मी को तसल्ली देने लगते। खुदा पर भरोसा रखो ज़ेबी की माँ, खुदा बहुत कारसाज है। देखना वक्त आने पर सारे काम खुद ब खुद होते चले जाएंगे। ठीक ही तो कहते हैं अब्बा। अम्मा तो इस तरह फिक्रमंद रहती हैं जैसे मैं इस दुनिया की आखिरी कुंवारी लड़की हूँ। उसने किताब का सफ़ा पलटते हुए सोचा। और कितना पढ़ना है तुमने? असद आंखों में नींद की सुर्खी लिए उसके सामने खड़ा पूछ रहा था। क्यों, तुमने क्या करना है? ये बल्ब की रोशनी सीधी बरामदे में मेरी चारपाई पर पड़ रही है। रोशनी में नींद नहीं आ रही मुझे, उसने सर खुजाते हुए कहा। फिर तुम चादर लपेट कर सो जाओ, क्योंकि अभी मैंने ये पूरी किताब पढ़नी है। उसने राजागीरी उसके सामने लहराई। अच्छा फिर जल्दी पढ़ लो। वो बटन पर उंगली रखकर इत्मीनान से खड़ा हो गया। भाई तुम पढ़ लो तो मैं भी लाइट बंद करके सोने जाऊं। उसकी हैरत भरी नजरों के जवाब में असद ने वजाहत की तो उसकी बेख्तियार हंसी निकल गई।
मेरा ख्याल है तुम अभी भी सोए हुए हो। अच्छा फिर मैं सुबह पढ़ लूंगी। वो किताब रख कर उठ खड़ी हुई तो असद भी लाइट बंद करके बिस्तर पर चला गया। शी इज ए प्रीटी गर्ल, शी इज ए प्रीटी गर्ल, मोहन गर्दन ऊपर किए आसमान पर नजरें दौड़ाते हुए कह रहा था। जेबी ने हैरत से पहले मोहन को देखा, फिर उसकी नजरों के ताक़ुब में आसमान को देखा। ये तुम्हें आसमान पर कौन सी प्रीटी गर्ल नजर आ रही है? उसने मोहन के सर पर चपत लगाई और न जाने किस अंदाज में बैठा था कि किताब हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। मोहन ने बौखलाकर उसे देखा और फिर फौरन झुककर किताब उठा ली। ध्यान से सबक याद करो, उसने सख्ती से कहा। वो कोई घंटे भर से उसके साथ सर खपा रही थी। कर तो रहा हूँ आपी। मोहन ने फिर किताब खोल ली तो वो कमीज की सिलाई में मसरूफ हो गई। मोहन ने उसे मसरूफ देखकर दोबारा आसमान पर नजर दौड़ाई। आ गया, आ गया। मोहन एकदम ही चीख उठा। हाय मैं मर गई, कौन आ गया? उसके चीखने पर जेबी का दिल 100 मील फी मिनट की रफ्तार से भागने लगा था। वो देखें आपी, कोई घंटे भर से वो आसमान पे घूम रहा था। मुझे यकीन था ये जरूर आएगा। मोहन का जोश दीद नहीं था। या खुदा, कौन आएगा? कमाल है, आपको नजर नहीं आ रहा? वो देखे ना, सामने छत पर। मोहन ने झिंझलाकर उसे समझाया। जेबी ने मोहन के इशारे पर नजर दौड़ाई तो गहरी सांस लेकर रह गई। वो सफेद रंग का कबूतर था जो छत पर बैठा गुटर गूं कर रहा था। आप भी चले, हम उसे पकड़ते हैं। मोहन झट उठ खड़ा हुआ। कोई जरूरत नहीं, बैठो आराम से। जेबी ने उसे डपट दिया। आप भी प्लीज पकड़ देना, इतना खूबसूरत है, मोहन ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। कमाल करते हो मोहन, ना जाने किसका हो, हम ऐसे ही पकड़ लें। उसने मोहन को टालना चाहा। जिसका भी हो, अब तो हमारी छत पर बैठा है ना, मोहन ने डरते डरते उसे कायल करना चाहा। जेबी ने गुस्सैली नजरों से उसे देखा। आप ही प्लीज। दुनिया जहान की मासूमियत मोहन के चेहरे पर विराजमान थी। चलो मरो। वो बादल नखास्ता उठ खड़ी हुई। दोनों आगे पीछे सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंच गए। जेबी ने दुपट्टा उतारकर हाथ में ले लिया और झुके झुके अंदाज में कबूतर की तरफ बढ़ी। अगले ही लम्हे उसने दुपट्टा कबूतर पर फेंक कर उसे काबू में कर लिया। हुर्रा, ये हुई ना बात। मोहन का चेहरा खुशी से दमकने लगा था। नीचे आकर उसने कबूतर को पानी पिलाया। मोहन बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। आप ही से रखेंगे कहाँ? मोहन उसे अपनी मलकियत समझ बैठा था। जेबी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था कि इसी दौरान दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मोहन भागकर दरवाजे तक गया तो फिर वापिस आया तो मुंह लटका हुआ था। आप ही, वो लोग कबूतर लेने आए हैं। लो, हमने इतनी मेहनत से पकड़ा है तो अब लेने आ गए हैं। उसका अपना दिल न चाहा कबूतर वापस करने को। अभी वो बड़ी अफसुर्दगी से कबूतर को देख रहे थे जब दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। ओफो, उसने घबराकर भाभी के कमरे की तरफ देखा। अभी उठकर आ जाएंगी और अच्छी खासी डांट पड़ जाएगी। उसे इन बेसब्रे लोगों पर गुस्सा आने लगा। क्या बात है भाई? उसने दरवाजे तक आकर गुस्से से पूछा। वो जी, हमारा कबूतर आपके घर आया है। आने वाले ने मुअद्दब होकर जवाब दिया। कौन सा कबूतर? हमारे घर कोई कबूतर नहीं आया। उसने कबूतर दुपट्टे के नीचे छुपा लिया। मोहन इस हिकमत अमली पर झूम झूम गया। कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने खुद देखा, आपकी छत पर बैठा था। किसी दूसरे ने तिनक कर कहा था। जेबी ने गुस्से से बंद दरवाजे को घूरा। हाँ आया है, फिर क्या कर लेंगे आप? मोहन सर पर हाथ गिराकर बैठ गया था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी आपी गुस्से में सारा काम खराब कर देंगी। करना क्या है खातून, आप हमें हमारा कबूतर वापस करें। खातून? जेबी के तो पतंगे ही लग गए थे। दिमाग तो ठीक है आपका, ये खातून किसे कहा आपने? उसने चीख कर कहा। देखिए बीबी, जवाबन किसी ने कुछ कहना चाहा। बीबी? जेबी का तो बीपी लो होने लगा था बीबी के नाम पर। सो फौरन दरवाजा खोला और कबूतर तकरीबन उनके मुंह पर मार कर उसने ठक से दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। अरे आपी, ये क्या किया आपने? मोहन अपना हैरत से खुला मुंह बंद करके उसके पीछे लपका। हाँ तो और क्या करती, वो कम वक्त भी तो खातून और बीबी पर उतर आया था। एक तो पहले ही रिश्ता नहीं मिलता, ऊपर से ये खातून और बीबी मशहूर करवा देंगे मुझे। वो अपनी ही धुन में जल बुनकर कहती गई जब मोहन नासमझी के आलम में बस उसे देखे गया था। उसने कमरे में झांका। असद बड़ी महवियत से पढ़ने में मसरूफ था। वो फौरन किचन में आ गई। असद की साहब का हदायत को पेश नजर रखते हुए उसने दूध ज्यादा, पत्ती तेज और चीनी कम डालकर चाय तैयार की। फिर कप लाकर असद के सामने मेज पर रखा तो असद ने कदरे हैरत से उसे देखा और फिर किताब में गुम हो गया। जेबी ने पहले तो इस बेतवज्जही पर उसे घूरा, मगर फिर फौरन मुंह का जाविया दुरुस्त कर लिया। असद, तुम मेरे अच्छे से भाई हो ना? उसने पीछे से जाकर दोनों बाजू उसके गले में डालकर बड़े प्यार से पूछा। बिल्कुल, इसमें क्या शक है? असद की नजरें हनूस किताब पर जमी थीं। फिर मेरा एक काम कर दो ना। कौन सा? मुस्तनसर हुसैन ताड़र की केटू कहानी ला दो। सच बड़ी तारीफें सुनी है उसकी। जवाब असद के तवक्का के ऐन मुताबिक आया था। छोड़ो भी, क्या रखा है इन किताबों में, घर के काम वाम किया करो। असद के कहने पर वो चिढ़ गई। करती तो हूँ, सारा वक्त घर के कामों में ही गुजरता है। सॉरी भाई, लाइब्रेरी बहुत दूर है, आने जाने में अच्छा खासा वक्त निकल जाता है। असद ने चाय का कप उठाते हुए कहा। शर्म तो नहीं आती? उसने गुस्से में असद के बाल खींच डाले। अपनी दफा तो बड़े चक्कर लगते हैं, मेरी बारी में लाइब्रेरी दूर बहुत है। उसने असद की नकल उतारी। अरे मेरे बाल तो छोड़ो, क्या बदतमीजी है ये? वो झिंझला गया। नहीं छोड़ूंगी, पहले किताब लाने का वादा करो। नहीं ला के दूंगा। असद भी जिद में आ गया। क्या? वो चीखी तो पड़ी थी। गुस्से में उसके बाल मजीद जोर से खींच डाले। हाय मर गया। उसके हाथ से गर्म चाय छलक गई तो उसने फौरन घबराकर उसके बाल छोड़ दिए। इंतहाई जाहिल लड़की हो तुम। वो उठकर अपनी कमीज झाड़ने लगा।
अम्मा तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक परेशान होती हैं। कब जाओगी तुम इस घर से और कब तुमसे जान छूटेगी? वो जानता था ज़ेबी इस बात से चिढ़ती है, सो फौरन ही बदला लेने के लिए कह दिया। ज़ेबी को तो पहले ही अम्मा ने उठते बैठते ठंडी आहें भर भर के एहसास कमतरी में मुब्तला कर रखा था। असद के एक जुमले ने उसे मजीद तपा दिया। इतनी जल्दी है जान छुड़ाने की, तो इंतजार किस बात का है? कहीं कुएं में धक्का दे दो या जहर की पुड़िया ला दो, खाकर अपनी भी जान छुड़ाऊं और तुम लोगों की भी। वो गुस्से में सुर्ख होती कहकर दूसरे कमरे में घुस गई। असद हैरान परेशान खड़ा उसे देखता रहा और फिर फौरन उसके पीछे लपका। अरे ज़ेबी, मैं तो मजाक कर रहा था यार। अच्छा यार, दरवाजा तो खोलो, मुझे बताओ कौन सी किताब लानी है? वो बंद दरवाजे के बाहर खड़ा होकर पुकारने लगा, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। क्या हुआ? भाभी ने उसे बाहर खड़े देखकर पूछा। कुछ नहीं, ज़ेबी नाराज हो गई है, असद ने मुंह बनाकर कहा। ऐसी क्या बात है भाई, हम अभी मना लेते हैं अपनी लाला को, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा और शहराज को दरवाजा के पास खड़ा कर दिया। वो तोतली आवाज में उसे पुकारने लगा। असद को यकीन था अब दरवाजा खुलकर रहेगा, सो वो इत्मीनान से वहां से पलट आया, हाथ में पकड़ा कलम कमीज की जेब में डाला और साइकिल लेकर बाहर निकल गया। तकरीबन 1 घंटे बाद वापसी हुई तो जेबी शहराज को लिए बरामदे में बैठी थी। उसने किताबें लाकर उसके पास रख दी, मगर जेबी का मूड वैसा ही रहा। किताबों पर उसने एक नजर भी ना डाली थी। असद ने उसका सर पकड़कर चेहरा ऊपर किया। बेवकूफ लड़की, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच सकता हूँ? जेबी ने एक नजर उसकी तरफ देखा। बाहर से आने की वजह से चेहरा सुर्ख हो रहा था, माथे पर हल्का हल्का पसीना उभरा हुआ था। वो सिर्फ 1.5 साल छोटा था जेबी से, मगर उसका ख्याल हमेशा बड़ों की तरह रखता था। जेबी को एकदम ही उस पर टूट कर प्यार आ गया तो उसने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिला दिया। उसकी मुस्कुराहट से जैसे असद की जान में जान आ गई थी कि उसकी खफगी बर्दाश्त करना कम अज कम उसके लिए मुमकिन नहीं होता था। जितने सफरनामे मिले हैं वो मैं ले आया हूँ, असद ने किताबों की तरफ इशारा करके कहा तो वो शर्मिंदा हो गई। असद, उसकी आवाज पर असद पलटा। आई एम सॉरी, उसने बड़ी मासूमियत से कहा तो असद मुस्कुराता हुआ दोबारा कमरे में आ गया। ये ही तो अलमिया है, लड़कियों की शादी की उम्र होने लगे तो हम इन्हें स्कूल कॉलेज से हटाकर घरों में बिठा लेते हैं और उन्हें मजबूर करते हैं इस बात पर कि वो जैसे अच्छे रिश्तों का इंतजार करें। और जब ऐसा नहीं होता ना तो सिर्फ हम लोगों के रवैये बदल जाते हैं, बल्कि लड़कियां भी खुद को हर लिहाज से कमतर समझने लगती हैं। असद इस एक वाक्य से ही जान गया था कि अम्मा जो बार बार जेबी के सामने उसकी शादी ना होने का रोना रोती रहती हैं, तो इस बात ने जेबी को भी एहसास कमतरी में मुबतला कर दिया था कि शायद उसमें ही कोई खराबी है। लिहाजा उसने एक बार अम्मा के पास बैठकर उन्हें समझाया और सख्ती से मना भी कर दिया कि आइंदा जेबी के सामने ऐसी कोई बात ना की जाए। चंद दिन यूं ही सुकून से गुजर गए। खुद ज़ेबी हैरान थी कि अम्मा पर उसकी शादी का जो भूत सवार हुआ था वो क्या हुआ, मगर बहरहाल ये नई सूरत हाल उसके लिए खासी इत्मीनान बख्श थी कि अब अम्मा उसके हंसने खेलने पर बार बार नहीं टोकती थी। ये महज इत्तफाक था कि इन्हीं दिनों बड़ी फूफो की बेटी राबिया की शादी का कार्ड आ गया। कार्ड क्या आया, अम्मा की दबी दबी ख्वाहिशात फिर से जाग उठी। राबिया ज़ेबी से साल भर छोटी थी। अम्मा बरामदे में बैठी अब्बा से महवे कलाम थी। तो इसमें मेरा क्या कसूर? ज़ेबी कमरे में ऊँधी लेटी टांगे हिला रही थी। लड़का बैंक मैनेजर है। अम्मा जी, राबिया का बड़ा भाई अमेरिका में बरसरे रोजगार है और छोटा भाई इंजीनियर। बैंक मैनेजर का रिश्ता आ गया तो इसमें हैरत किस बात की? ज़ेबी ने करवट ली। एक हमारी ज़ेबी है, कभी किसी स्कूल मास्टर का रिश्ता आ गया तो कभी किसी क्लर्क का। अम्मा के लहजे में हसरत ही हसरत थी। जाहिर है हमारे अब्बा महकमा माल में क्लर्क, बड़े भैया वापडा में क्लर्क। इस 5 मरले के मकान में कोई 19वीं ग्रेड का अफसर तो बारात लाने से रहा। ज़ेबी ने चुटिया से निकले बालों को कसकर पिन लगाई। अरे अब बस भी करो, तुम्हारी कौन सी 6-7 बेटियां हैं जो हर वक्त यही फिक्र सर पर सवार रखती हो? अब्बा उनकी बात सुनकर उकता उकता गए। अरे फिक्र ना करूं तो और क्या करूं, अम्मा अब्बा से उलझने लगी थी। वाकई अम्मा, तुम घर बैठकर सिवाय फिक्र के और कुछ नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है अब मुझे ही कुछ करना होगा। उसने इत्मीनान से उठकर हाथों से कमीज की शिकनें दूर की और उठकर आईने के सामने आ गई और बड़ी तनकीदी निगाहों से अपना जायजा लिया। नक्कुश गैर मामूली ना सही, बेहद मामूली भी ना थे। आंखें तो अच्छी खासी हैं मेरी, बस आईब्रोज को जरा सी शेप दे लेनी चाहिए। रंगत है तो गंदुमी, मगर शुक्र है कील मुहासों से बची हुई है। हाँ, सबसे नागवार चीज चेहरे पर छाई पर मुजदगी है। बंदे को जरा फ्रेश होना चाहिए। उसने बड़े गौर से अपने चेहरे को देखा था और फिर अगले ही रोज उसने पुराने रिसाले निकाल निकाल कर अपनी जल्द के मुताबिक टोट के नोट किए और भाभी अम्मा से चोरी सब नुस्खे खुद पर आजमाने लगी। पानी पहले दिन में बवक्त जरूरत पीती थी, अब जब थोड़ी देर हो जाती तो गटागट पानी का गिलास चढ़ा जाती। बाल पहले भी कंधों तक थे, मगर जरा ऊंचे नीचे थे। हमसाई की लड़की से कहकर बराबर तरशवा लिए। जरा से दूध में देसी अंडा मिलाकर हफ्ते में 2 बार लगाए तो बालों का स्याह रंग मजीद चमक उठा था। अम्मा, मैंने राबिया की शादी पर जाना है। वो कितने ही दिन अम्मा के पीछे पड़ी रही थी। आखिरकार बड़ी मिन्नतों से अम्मा राजी हुई। फिर एक रोज बड़ी फुफ्फो ने हमसायों के घर फोन किया और अम्मा को खास ताकीद की। जेबी को देखे अरसा हो गया है, मैं अपनी बीमारी की वजह से आने से मजबूर हूँ, वरना खुद लेने आ जाती, लेकिन अब तुम उसे कम अज कम 10-15 दिन पहले भिजवाओ।
ये फूफो सबसे बड़ी थीं। दादा दादी की वफात के बाद अब्बा इन्हें अम्मा की जगह ही समझते थे। सो अब्बा से इजाज़त का मरहला खुद ब खुद तय हो गया कि वो फूफो के हुक्म से इनकार नहीं कर सकते थे। अम्मा के साथ जाकर उसने शादी में पहनने के लिए कपड़े खरीदे। मेकअप के नाम पर उसके पास सवाए एक लिपस्टिक के कुछ नहीं था, सो अब ज़रूरत के मुताबिक कुछ चीज़ें खरीद लीं। जिस रोज़ सुबह असद ने उसे बड़ी फूफो के यहाँ छोड़ने जाना था, वो बेहद खुश थी और पुरजोश भी। एक तवील अरसा हो गया था खानदान भर के लोगों से मिले हुए। बाकी सब रिश्तेदार तो एक ही शहर में थे, बस उनका घराना ही दूसरे शहर में था। यही वजह थी कि वो तमाम कज़न से मिलने के लिए बेचैन थी। उसे बड़ी फूफो की तरफ आए हुए 2 रोज़ हो गए थे और इस अरसे में उसने कोई काम नहीं किया था। सिवाय उस घर के मकीनों को ताड़ने के, वो हर किसी की आदात का बगौर जायज़ा ले रही थी। बड़ी फूफो जोड़ों के दर्द की वजह से बस अपने कमरे तक महदूद थीं, मगर इसके बावजूद घर के तमाम मामलात पर उनकी नज़र थी। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या लेन-देन हो रहा है, उन्हें खूब खबर थी। एक ही कमरे में महदूद होने के बावजूद वो पूरे घर का कंट्रोल अपने हाथ में लिए हुए थीं। उनके मशवरे के बगैर घर में कोई काम ना होता था और उनकी हर बात हुक्म का दर्जा रखती थी। उनके बाद घर में जिस फर्द की हैसियत मुस्तहकम थी वो सफ़िया भाभी थी। फूफो के बड़े बेटे की ज़ोजा मोहतरमा। उनके 4 बच्चे थे। घर के तमाम कामों का बोझ उन्हीं के कंधों पर था और आजकल शादी की वजह से काम इस हद तक बढ़ गया था कि वो घन चक्कर बनकर रह गई थीं। उनके बाद रिजवान था। फूफो का छोटा बेटा इंजीनियर था और गैर शादीशुदा माँ और भाभी के हुक्म पर ही चलता था। ज़ेबी ने भी उसे उनकी मुखालफत करने या उनसे उनकी मुखालफत करते या झगड़ते नहीं देखा था। इस घर में सबसे बेज़रर शख्सियत फूफा जान की थी, जो इंतहाई मुरंज किस्म की शख्सियत रखते थे। राबिया इन दिनों अपने कमरे में घुसी अपने हाथों, पाँव और चेहरे की देखभाल में लगी रहती थी। इस घर के दूसरी तरफ राबिया के चचा का घर था। दरमियान में सिर्फ एक बार थी, जिसे फलांग कर वक्तन-फ़वक्तन राबिया की कज़न्स राबिया के पास आ जाती थीं। और ज़ेबी ने नोट किया था कि उनके आने पर सफ़िया भाभी की यही कोशिश होती थी कि राबिया अपनी कज़न्स के साथ मिलकर अपने कपड़े वगैरह समेट ले। मगर इन लोगों के दरमियान सिर्फ राबिया का अरूसी जोड़ा, राबिया का मेकअप और हेयर स्टाइल मौजूद गुफ्तगू बना रहता था, जिससे भाभी काफ़ी चिढ़ती थीं। गर्ज उसने खूब दीदा रेज़ी से काम लेकर जाँच लिया था कि किस फ़र्द को किस तरह ट्रीट करना है। लोगों के चलन पर हैरान होना छोड़े ज़ेबी जी, लोगों के रंग में रंग जाएँ, बेहतरी इसी में है। उसने खुद को हदायत दी और अगले ही रोज़ वो कमर कस के मैदान में कूद पड़ी थी। रात देर तक कामों में उलझे रहने की वजह से सुबह सफ़िया भाभी की आँख खुली तो बाहर हर तरफ उजाला फैल चुका था। वो हड़बड़ा कर उठ गईं। इतनी देर हो गई यहाँ, तो अभी हंगामा खड़ा हो जाएगा। उन्होंने दुपट्टा खींचकर गले में डाला, पाँव चप्पल में फँसाए, बाथरूम में जाकर पानी के चंद छींटे मुँह पर मारे और फिर किचन की तरफ भागी। अरे! किचन में ज़ेबी को देखकर वो हैरान रह गईं। उनकी आवाज़ पर ज़ेबी चौंक कर पलटी। आई एम सॉरी भाभी, असल में मेरी आँख जल्दी खुल गई थी। भूख का एहसास हुआ तो मैं किचन में आ गई। उसने शर्मिंदा से लहजे में वज़ाहत की। अरे नहीं भई, ऐसी कोई बात नहीं। असल में रात देर से सोई, इसलिए मेरी भी आँख नहीं खुली। चाय पकते देखकर इन्हें कदरे सुकून महसूस हुआ था। अगर चाय बन गई हो तो जल्दी से कप में डाल दो, मैं अम्मी को दे आऊँ और ज़रा जल्दी नाश्ता करती हैं। भाभी ने फूफो का ज़िक्र किया। इन्हें मैं नाश्ता दे आई हूँ भाभी। ज़ेबी ने कनखियों से देखा। उनके चेहरे पर यकलखती इत्मीनान उभर आया था। बहुत अच्छा किया तुमने। नाश्ते में ज़रा देर हो जाए तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। भाभी आटा गूँथने की तैयारी करने लगीं। अच्छा, अब तुम जाओ, बाकी मैं खुद कर लेती हूँ। उन्होंने नरमी से उसे चूल्हे के पास से हटाया। कोई बात नहीं भाभी, मुझे कौन-सा कोई और काम है। यूँ भी फ़ारिग रहने की आदी नहीं, इसलिए इन 2 दिनों में खासी उकता गई हूँ मैं। उसकी बात पर भाभी बेख्तियार मुस्कुरा दीं। अरे भई, यहाँ तो लड़कियाँ कामों से बचने के लिए हज़ार बहाने ढूँढ लेती हैं और तुम हो के काम करने के बहाने ढूँढ रही हो। भाभी की बात पर वो सिर्फ कंधे उचका कर रह गई। अपनी-अपनी आदत है भाभी। अच्छा, फिर यूँ करो, तुम आमलेट बना दो, मैं आटा गूँथ कर पराठे बनाती हूँ। भाभी को तो हर वक़्त किसी हेल्पर की तलाश रहती थी, सो फ़ौरन बेतकल्लुफ़ी इख्तियार कर गईं और वो मुस्कुरा कर सारे काम निपटाती चली गई। तौबा है फूफो, आपके बाल किस कदर रूखे हो रहे हैं, सर भी खुश्की से भरा पड़ा है। भाभी और राबिया बाज़ार चली गई थीं, वो झट तेल की बोतल उठाए फूफो के पास चली आई। अरे बेटी, कितने ही दिन हो गए, तेल बालों के करीब भी नहीं फटका। हर कोई अपने धंधे में उलझा हुआ है। इतनी तौफीक कहाँ कि कोई 2 बूंदे तेल की मेरे सर में डाल दे। फूफो खासी बेजार बैठी थीं। एक हमारा ज़माना था, हर रोज़ अपनी सास के सर में तेल की मालिश करते, कपड़े बदलवाते, बाल बनाते। वो हमारी खिदमत से खुश होती और हम उनकी दुआओं दुआओं से। ज़ेबी दिलचस्पी से फूफो की बातें सुनने लगी। मगर आजकल तो बुज़ुर्गों की कोई वक़्त नहीं रही। जैसे-तैसे हम लोग अपना वक़्त पूरा कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी बड़े सब्र से हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं फूफो। उसने तेल उनके सर में उंडेल कर मसाज शुरू किया। आपके बच्चे तो आपसे बेहद प्यार करते हैं और तो और सफ़िया भाभी आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकती। उसने ज़रा मुबालगे से काम लिया। बुढ़ापे में कदम रखते ही इंसान खुद को दूसरों पर बोझ तसव्वुर करने लगता है। वक्तन-फ़वक्तन उन्हें ये एहसास दिलाते रहना चाहिए कि वो हमारे लिए किस कदर अहम हैं। ये ज़ेबी का अपना नज़रिया था, सो वो फूफो को पूरी तरह ये एहसास दिला रही थी।
मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश रही है बुजुर्गों की दुआएं समेटने की, मगर बदकिस्मती से होश संभालते ही दादा दादी वफात पा गए। नाना वगैरह की तरफ वैसे भी कभी कभार ही जाते थे। फूफा उसकी बात पर हंकारा दे रही थी। वैसे जेबी बेटा, तुम्हारे हाथों में नरमी बहुत है। फूफा को नींद के झोंके आने लगे। उसने मसाज करने के बाद उनके बाल बनाए और जब वो तेल की शीशी उठाकर कमरे से बाहर निकली तो फूफा उसे दवाएं देते देते बाकायदा ऊँगने लगी थी। जेबी और भाभी ढेर सारे कपड़े इधर उधर फैलाए लाउंज में बैठी थी। भाभी तमाम जोड़े इस्त्री करके उन्हें तय करके डब्बों में पैक करती जा रही थी। कुछ कपड़े जिन पर कढ़ाई का काफी काम किया हुआ था उन्हें हैंगर में लटकाकर पिन्नों की मदद से सेट करती जा रही थी। वो सोफे पर बैठी कमीज की तरपाई के साथ साथ भाभी की बड़बड़ाहट भी सुनती जा रही थी। पहली दफा देखी है ऐसी लड़की। जहेज का सारा सामान यहाँ से वहां बिखरा पड़ा है और मोहतरमा खुद 24 घंटे कभी खीरा चेहरे पर सजाई बैठी रहती हैं और कभी कोई मास्क। वो राबिया की सुस्ती से सख्त नाला थी। ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक ही वो पलटी तो छोटे काशिफ को झटक दिया, जो बड़े मजे से कॉमन पिनों का डब्बा खोले बैठा था। 1000 दफा कहा है मत छेड़ा करो चीजों को। उन्होंने उसके हाथ से झपटा। चलो उठो यहाँ से, आओ तुम्हारे बाप के पास छोड़ के आऊं तुम्हें। उन्होंने इसे एक बाजू से पकड़कर घसीटा। सारा साल बाहर ऐश करते हैं, अब 4 दिन के लिए आए हैं तो बच्चों को भी नहीं संभाल सकते। वो संग झिंझलाई हुई थी, बोलती हुई बाहर निकल गई और वो मुस्कुराहट छुपाकर अपने कामों में मसरूफ रही। अस्सलाम वालेकुम। किसी भारी मर्दाना आवाज पर उसने चौंक कर सर उठाया। कोई अजनबी ही था। उसने सलाम का जवाब देते हुए दुपट्टा कांधों पर फैलाया और सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। सफिया भाभी कहाँ हैं? आने वाले ने पूछा तो वो समझ गई कि यकीनन भाभी के जानने वाले होंगे। आप बैठे प्लीज, मैं देखती हूँ। उसने कमीज एक तरफ रखी और पाँव सोफे से नीचे उतारे। हाय! कोई चीज बड़े जोर से उसके पाँव पर चुभी तो उसने बर्क रफ्तारी से पाँव वापस खींच लिया, जबकि उसकी हाय पर वो अजनबी बैठते बैठते रुक गया। हाय, मैं मर गई। जेबी के पाँव में कॉमन पिन आधी से ज्यादा घुसी हुई थी और ये देखते ही जेबी की आधी से ज्यादा जान हवा हो गई थी। इसे निकाल लीजिए ना। आने वाले ने उसे आंखें फाड़कर अपने पाँव की तरफ तकते देखकर कहा। कैसे निकालूं? जेबी ने उसे ऐसे घूरा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। हाथ से? जवाबन उसकी आंखों में उभरने वाला तासुर भी कुछ कुछ ऐसा ही था। हाय अम्मा जी! 2 मोटे-मोटे आंसू खुद ब खुद उसकी आंखों में आ गए। डरते-डरते हाथ पिन की तरफ बढ़ाया, दांत सख्ती से एक दूसरे पर जमाकर पिन को हाथ लगाया ही था कि जरा से हिलने पर दर्द की तेज लहर पाँव में दौड़ गई। उसने झट हाथ वापस खींच लिया। ओफो भई, मामूली सी तो पिन है, लाए मैं निकाल देता हूँ। वो सोफे से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। ना नहीं नहीं, हाथ मत लगाइएगा, दर्द होता है, मैं खुद ही निकाल लूंगी। उसे उठते देखकर उसने बेख्तियार दोनों हाथों से मजबूती से पाँव पकड़ लिया। अरे क्या हुआ? भाभी इस दौरान आई और उसे देखकर पूछने लगी। भाभी, ये उसने पाँव की तरफ इशारा किया। ओफो, तो भाई इनको निकालो ना, यूं ही पाँव पकड़कर क्यों बैठी हो? वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसके नहीं नहीं करने के बावजूद उन्होंने सख्ती से उसका पाँव पकड़कर एक झटके से पिन बाहर निकाल दी। खून का सुर कतरा वहां उभर आया था। ये सब इस काशी की कारस्तानी है, सारी पिन्ने यहाँ बिखेर गया है। भाभी ने झुककर सारी पिन्ने दोबारा डब्बे में बंद की। हाँ भाई हमाद, तुम सुनाओ कैसे हो? भाभी आने वाले की तरफ मुतवज्जा हुई। बिल्कुल ठीक हूँ। ये मम्मा ने कुछ साड़ियाँ भिजवाई हैं, राबिया को दिखा दें, जो पसंद हो वो अलग कर दें। उन्होंने बड़ा सा शापर भाभी की तरफ बढ़ाया। हाँ ये ले जाओ जेबी, राबिया अपने कमरे में होगी। भाभी ने शापर उसके हाथ में थमा दिया और इस दफा उसने बड़े एहतियात से पाँव नीचे रखा था। भाभी ये? हमाद ने सवालिया नजरों से जेबी को देखा। अरे हाँ भाई, मैंने तारुफ तो करवाया ही नहीं। भाभी खामखा ही हंस दी। ये महजेब है, राबिया के मामू की बेटी। और जेबी, ये हमाद हसन है, मेरे छोटे ताया की साली की देवरानी के बेटे हैं। जेबी ने हैरत से भाभी को देखा। उसे इतने लंबे चौड़े रिश्ते की कुछ समझ नहीं आई, मगर चूंकि भाभी उसे बताकर दोबारा हमाद की तरफ मुतवज्जा हो गई थी, इसीलिए वो कंधे उचकाकर राबिया के पास आ गई। राबिया की मायूं की रस्म अदा हो गई थी। सारा घर मेहमानों से भर गया था। हर कमरे में खुशगपियों, कहकहों, सरगोशियों की आवाजें हम वक्त गूंजती रहती थीं। हर कोई बेफिक्री के मजे लूट रहा था। वक्त पर खाना, वक्त पर चाय, कभी किसी को मौजूद गुफ्तगू बना लिया जाता, कभी किसी नई ताज़ी खानदानी खबर पर घंटों बातचीत होती रहती। नौजवान लड़कियों को नित नए कपड़े दिखाने का एक सुनहरी मौका मिल गया था। जेबी ने फुर्ती और होशियारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। किसी मेहमान खातून का बच्चा रो रहा होता तो वो झट बच्चे को पिचकारती हुई वहां से ले जाती, कोई खिलौना देती, गुदगुदी करती और जरा सी देर में हंसता खिलखिलाता बच्चा माँ की गोद में वापस दे जाती। कोई खातून सर दर्द की शिकायत करती तो वो 2 मिनट में चाय का कप और सर दर्द की गोली उनके हाथ में थमा जाती। खाना खिलाते वक्त वो मुसलसल ध्यान रखती कि किसी के पास सालन खत्म तो नहीं हुआ, चावलों की डिश खाली तो नहीं, कौन बच्चा पानी के लिए रो रहा है। वो हर एक की जरूरत का बखूबी ख्याल रखती। फुफ्फो का खाना खुद गर्म करके उनके कमरे में ले जाती। सफिया भाभी के साथ मिलकर उसने राबिया के जहेज का सारा सामान सेट करके कमरे में बंद करवा दिया था। रात को मेहमानों के लिए सोने के इंतजाम की जिम्मेदारी भी उसके सर थी और वो अपना चैन आराम, खाना पीना, पसे पुछ डालकर ये सब काम कर रही थी कि ये सब काम उसे करने थे, बल्कि उसे करने पर मजबूर किया था।
सकीना खाला की तरह अमेज नजरों ने, अम्मा के हमा वकवा वेलों ने और भाभी नाइमा के लबों पर छुपे छुपे तबस्सुम ने, सो वो ये सब कर रही थी। इस रोज भी वो किचन में तमाम बचे हुए खाने फ्रीजर में महफूज कर रही थी जब रिजवान चला आया। उसने एक नजर मसरूफ सी जेबी पर डाली, फिर इधर उधर देखकर वापस पलटने को था जब जेबी की नजर उस पर पड़ी। कुछ चाहिए था? उसने बेख्तियार पूछा था। चाय बनवानी थी, मगर आप तो पहले ही खासी मसरूफ हैं, उसने जरा तवक्कुफ से कहा। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। वो मुड़कर देगची उठाने लगी। मैं अपने कमरे में हूँ। रिजवान एक नजर उसे देखकर चला गया। जेबी ने चाय का कप तैयार किया, मगर किचन के दरवाजे से निकलते निकलते रुक गई। क्या मुझे कुछ जाना चाहिए? उसने एक लम्हे के लिए सोचा। फिर उसने वहीं से किसी बच्चे को आवाज दी और चाय रिजवान के कमरे में भिजवा दी। यहाँ तो जरा सी बात का झट अफसाना बन जाएगा, उसने सोचा और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई थी। अरे तरबियत तो की है हमारी भावज ने जेबी की। फुफ्फो के कमरे में जाते हुए वो ठटक गई। अपना नाम सुनते ही फितरी सा तजस्सुस उसके दिल में उभरा तो उसने वहीं रुककर कान दरवाजे से लगा दिए। इधर से उधर फिरकी की तरह घूमती रहती है। मजाल है जो कभी कमर सीधी करते देखा हो उसे। जब से आई है मेरी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। आते जाते खड़े खड़े पूछ जाती है कि फुफ्फो किस चीज की जरूरत तो नहीं। अरे मैं कहती हूँ मेरी अपनी राबिया ने कभी मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। फुफ्फो के लहजे में उसके लिए प्यार ही प्यार था। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही आपा, लड़की वाकई बड़े गुणों वाली है। और फिर हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती है, कभी माथे पर बल नहीं देखा, ना कभी चिढ़ के बोलते सुना। कोई और खातून भी फुफ्फो की हाँ में हाँ मिलाने लगी। जब से जेबी आई है सच मेरा तो बोझ हल्का हो गया है। जेबी की आवाज पर वो एकदम चौंक गई। अपनी तारीफ सुनते सुनते वो भूल गई थी कि वो यहाँ भाभी को बुलाने आई थी। सो फौरन कदमों की चाप पैदा करते हुए उसने दरवाजा खोला। भाभी आपको सफदर भाई बुला रहे हैं। उसने सर अंदर करके भाभी को पैगाम दिया और उनके सर हिलाने पर वापस पलट गई। वो इस वक्त में बिन पतंगी उड़ी जाऊंगी की अमली तफसीर नजर आ रही थी। गोया मेरा मसला थोड़ा थोड़ा हल हो रहा है। यहाँ तो सब लोग मेरे गर्विदा नजर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ गर्विदा होने से क्या हासिल? बात कुछ आगे भी तो बढ़नी चाहिए। वो कमरे में आकर बेड पर गिर गई। अम्मा न जाने कब आएंगी, आखिर उन्हें भी तो मालूम हो उनकी बेटी कितने गुणों वाली है। उसे अम्मा की शिद्दत से इंतजार था। खाने लगने में अभी वक्त था। सुजैबी भी ढोलक बजाती लड़कियों के पास आ गई। हर कमरे में डिश वीसीआर की सहूलत मौजूद थी, इसलिए तमाम लड़कियां नए नए गाने गाकर एक दूसरे से मुकाबले कर रही थीं। वो बस चुपचाप उनके पास बैठी तालियां बजाती रही। ए सना जरा मुझे पानी तो पिलाओ। ढोलक जरा देर के लिए रुकी तो राबिया की चची ने अपनी बेटी को पुकारा। जेबी प्लीज। सना मतलजी निगाहों से उसे देखने लगी। अरे वो भी तो मेहमान है इस घर में, इसे भी तो 2 घड़ी बैठने दिया करो। उन्होंने जेबी को उठते देखकर फौरन बेटी को टोक दिया। मेहमान कहाँ है अम्मी? जेबी तो घर वाली ही लगती है, आपने देखा नहीं? वह मुश्किल 10 रोज हुए हैं इसे यहाँ आए हुए और हर जुबान पर इसी का नाम है। सना के कहने पर जेबी ने चौंक कर उसे देखा। वो बड़ी गहरी निगाहों से जेबी को देख रही थी। जेबी उसके तासुरात को कुछ समझ ना पाई। अरे लड़कियों जल्दी उठो यहाँ से। सफिया भाभी बौखलाई हुई सीढ़ियां उतर रही थी। सारा आसमान गर्दालूद हो रहा है, बस आंधी शुरू होने वाली है। आंधी क्या तूफान आएगा। वो मुसलसल बोलती हुई नीचे आ गई। मैं तो पहले ही कह रही थी, घुटन सी है माहौल में, कुछ ना कुछ आएगा जरूर। फूफो ने अपना अंदाजा जाहिर किया। आंधी का लफ्ज सुनते ही जेबी एकदम घबरा गई। घर में आसमान जरा रंग बदलता तो अम्मा हंगामा खड़ा कर देती थी। फलां चीज उठा लो, फलां चीज ढांप दो, दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो। अम्मा हदायत देती रहती और वो कभी इधर कभी उधर भाग भाग कर हलकान हो जाती। और अब यहाँ तो इतना सामान बिखरा हुआ था। उसने एक नजर सहन में दौड़ाई। आप सब लोग उठकर कमरों में चलें ताकि चारपाई यहाँ से उठा लें। भाभी के कहने पर वो सब खवातीन उठना शुरू हो गईं। ज़ेबी ने फौरन इधर उधर दौड़ते बच्चों को काबू में करना शुरू किया। तूफान आने वाला है, सारी मट्टी आंखों में चली जाएगी, भाग जाओ कमरों में। वो बच्चों को डरा डरा कर कमरे में भेजने लगी, फिर सहन से चारपाइयां उठा उठाकर बरामदे में खड़ी करने लगी। राबिया की कजन समीना उसकी मदद करवाने लगी। हवा में तेजी आने लगी। जेबी ने भागकर तमाम कमरों के दरवाजे खिड़कियां बंद करने शुरू कर दिए। जेबी बहन इधर आओ जरा। भाभी सफिया ने उजलत में उसे पुकारा कि काशी उनकी गोद में रो रहा था। किचन में सारी चीजें यूं ही खुली पड़ी हैं, उन्हें अच्छी तरह ढांप कर ऊपर कोई कपड़ा डाल दो, खाने में मिट्टी ना चली जाए। और मिठाई के डब्बे भी वहां मेज के नीचे रखे हैं, उन्हें वहां से उठाकर अलमारी में रख दो, मगर ताला याद से लगा देना। ये लो चाबी, संभाल कर मुझे वापस पकड़ा देना। भाभी उसे हदायत देकर कमरे में चली गई और वो किचन में आ गई। और फिर तमाम काम करके जब वो किचन का दरवाजा बंद कर रही थी उसी वक्त बिजली चली गई। लो ये एक और मुसीबत, अभी बच्चों की भा भा से पूरा कमरा गूंजने लगेगा। उसने झिंझला कर सोचा। बाहर वाकई तूफान की ही सूरत हाल थी। बारिश नाम को नहीं थी, बस आंधी जोर पकड़ती जा रही थी। वो अंदाजे से ही टटोल टटोल कर कमरे में दाखिल हो गई और दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। आगे मालूम नहीं गुजरने की जगह है भी कि नहीं, उसने सोचा। इसी दौरान घुप अंधेरे में बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। जेबी हैरान हो गई कि कमरे में मौजूद सब बच्चे माओ की घुड़कियों से डरकर चुपचाप बैठे थे। ये आवाज यकीनन बाहर से आ रही थी। ये कोई बच्चा रो रहा है, उसे पकड़ लें। बच्चे की रोती आवाज के साथ कोई मर्दाना आवाज उभरी थी।
कहाँ है बच्चा? ज़ेबी ने वहीं खड़े-खड़े आंखें फाड़कर देखने की कोशिश की। यहाँ है, दरवाजे के पास। ज़ेबी ने हाथ आगे बढ़ाकर अंदाज़न बच्चे को ढूंढने की कोशिश की। रोने की आवाज़ तो यहीं से आ रही है। अचानक उसके हाथ पर बच्चे का बाजू आया। उसने उसे शर्ट से पकड़कर अपनी तरफ घसीट लिया। बाकी सब लोग तो यहाँ है, तुम कहाँ रह गए थे? ज़ेबी ने भुननाकर पूछा। अरे ये क्या कर रही हैं आप? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अचानक ही उसकी कलाई मर्दाना हाथ की गिरफ्त में चली गई थी। ये लीजिए बच्चा। बच्चे का हाथ बकायदा उसके हाथ में देकर कहा गया। वो शर्मिंदगी से अपनी जगह खड़ी रह गई थी। कदमों के जाने की आवाज उभरी तो उसमें हरकत हुई। अम्मी, अम्मी, बच्चा सिसक रहा था। भाई ये किस बच्चे की अम्मी है? ओफो, मेरा मतलब है ये किस अम्मी का बच्चा है? उसका दिल अपना सर पीट लेने को चाहा। अरे मेरा है। मोहसिन अपने अब्बा के पास था। आंधी से डर के रो रहा होगा। किसी कोने से मतलूबा अम्मी बोली तो उसने सुकून का सांस लेकर बच्चा आगे पार्सल किया। मालूम नहीं यहाँ कहीं बैठने की भी जगह है कि नहीं। उसने आहिस्तगी से आगे बढ़कर बैठने को जगह तलाश की। यह गालबन बेड है। उसने हादसे महसूस किया और फिर वहीं किनारे पर टिक जाना चाहा। हाय मेरा पाँव गया। कोई निस्वानी चीख बुलंद हुई और वह एक झटके से उठ खड़ी हुई। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने मुंह पर दुपट्टा रखकर बामुश्किल हंसी जब्त की। कौन है यहाँ पर? उसी पाँव वाली ने खा जाने वाले लहजे में पूछा। भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। क्या हो रहा है भाई? कोई मोमबत्ती वगैरह ही मंगवा लो। किसी और खातून ने मशवरा दिया। रिजवान इमरजेंसी लाइट का बंदोबस्त कर रहा होगा। इतनी देर में मोमबत्ती मंगवा लेते हैं। ज़ेबी, कहाँ हो भाई तुम? भाभी ने उसे पुकारा मगर वो चुपचाप जहाँ खड़ी थी वहीं कालीन पर बैठ गई। कौन है? कपकपाती हुई सरगोशी उसके कानों से टकराई। वो चंद लम्हे आवाज पहचानने की कोशिश करती रही, फिर चौंक गई। समीना, ये तुम हो? ओह ज़ेबी। उसकी सरगोशी के जवाब में समीना ने चहकना चाहा मगर उसकी पर वो भी दुबक गई। चुप रहो। दीवारों से सर टकरा टकरा कर मोमबत्ती लाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। ज़ेबी ने समीना के कान में सरगोशी की। तो क्या हम दोनों यहीं? समीना की हंसी का फव्वारा उबलने लगा तो वो भी अपना कहकहा रोकने की कोशिश में बेहाल हो गई। सुबह वो उठी तो भाभी पहले ही किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। ज्यादातर लोग अभी बिस्तरों में ही थे कि रात को बिजली आते और फिर खाना खाते काफी देर हो गई थी। वो बाहर निकली तो मुंह बसोर कर रह गई। बरामदे और सहन में जैसे किसी ने मनो मिट्टी ला फेंकी हो। उसे सख्त चिढ़ थी आंधी के इन रह जाने वाले असरार से। सो अब भी उससे रहा ना गया तो पाइप लगाकर बरामदा धोना शुरू कर दिया। पानी की मोटी धार से चिकना फर्श एकदम साफ सुथरा हो गया। उसे इस काम में बेहद लुत्फ आ रहा था कि उसके अपने घर में ईंटों का फर्श था जिसको धोते वक्त खासी मशक्कत करनी पड़ती थी। बरामदों के बाद सहन की बारी आ गई। वो बड़े मगन से अंदाज में गर्द आलूद दीवारों पर पानी बहा रही थी। जब उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने गर्दन घुमा कर देखा। रिजवान तौलिए कंधे पर रखे हैरत से उसे देख रहा था। भाई ये इतनी सुबह सुबह आपको क्या सूझी? सुबह? ज़ेबी ने बरामदे में लगे क्लॉक पर नजर डाली। नजर डाली। दो अढ़ाई नहीं, क्लॉक पर नजर डाली। वहां पर अढ़ाई पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये। अच्छा, नजर दौड़ाई। सुबह। ज़ेबी ने बरामदे में लगे क्लॉक पर नजर दौड़ाई। पूरे 9 बज रहे थे। मेरा मतलब है भाभी ने किस औरत को काम के लिए बुलवा लिया था? वो किसी औरत को काम के लिए बुलवा लिया था, वो कर लेती ये सब। रिजवान ने उसकी निगाहों का मफहूम समझकर दोबारा कहा। फिलहाल तो वो औरत आई नहीं और न जाने कब तक आएगी। मेरा तो उस वक्त तक बुरा हाल हो जाता इतनी मट्टी देखकर। उसने पानी की फुहार अपने पाँव पर डाली और बाद में पानी बंद कर दिया। रिजवान जवाबन कुछ नहीं बोला था, बस एक नजर उसके धुले धुलाए साफ सुथरे पैरों पर डाली और बाथरूम में घुस गया था। आज मेहंदी की रस्म होनी थी और प्रोग्राम के मुताबिक आज ही अम्मा अब्बा को भी आना था, लिहाजा वो बेचैनी से उनकी मुंतजिर थी। धीरे धीरे शाम होने लगी। वो उकता सी गई। वो दूर दराज के मेहमान भी आ चुके थे और इस वक्त वो चाय का कप लिए किचन से निकली थी जब अचानक दरवाजे पर अब्बा और मून का चेहरा नजर आया। मून भागकर उससे लिपट गया था। अम्मा क्यों नहीं आई? उसने चाय का कप मेहमान खातून को देकर अब्बा से पूछा। हाँ, वो तुम्हारी मुमानी की तबीयत ठीक नहीं थी, नाइमा वहां चली गई थी, इसलिए तुम्हारी अम्मा को घर पर रुकना पड़ा, अब्बा ने उसे बताया। अब्बा बहुत कम कहीं आते जाते थे, इसलिए इनकी तीनों बहनें उन्हें घेरे में लिए गिले शिकवे करने लगी थी और वो समीना को अब्बा की आमद का बताने कमरे में भाग गई। समीना ने देखते ही हेल्प मी का नारा लगाया था कि वो घंटे भर से मेहंदी के थाल सजा रही थी। अरे तुम यहाँ अकेली फंसी हुई हो? ज़ेबी उसके पास ही बैठ गई और खुद भी उसकी मदद करने लगी। बारात दूसरे शहर से आनी थी, इसीलिए जाहिर है वो दूसरे शहर से मेहंदी लगाने तो नहीं आ सकते थे। अलबत्ता सब कजन्स ने मेहंदी सजाकर हल्ला गुल्ला करने का प्रोग्राम बना रखा था। वैसे मेरा ख्याल है तुम्हारे यहाँ क्याम का मुस्तकिल प्रोग्राम बनाया जा रहा है। बातों के दौरान अचानक ही समीना ने कहा तो वो एकदम चौंक गई। क्या मतलब? वो बात समझ गई थी मगर दानिस्ता अनजान बन गई। कल ताया जी से बात कर रही थी कि मुझे ज़ेबी बेहद पसंद है। राबिया की शादी के बाद भाई भावच के कानों में बात डाल दूंगी, समीना बता रही थी और ज़ेबी के आसपास फुलझड़ियां छूटने लगी थी। अरे वाह अम्मा, तुम ख्वामखा मुझे इतना अरसा बदकिस्मत करार देती रही। सारी उम्र तो घर में बंद रखा मुझे, ना किसी ने देखा भाला ना पसंद किया। अब देखना एक नहीं कई कई पत्थर आएंगे तुम्हारे घर में। उसकी नजरों के सामने वो खवातीन घूम गईं जिनकी आंखों में बारहा उसने अपने लिए पसंदीदगी के आसार देखे थे। क्या बात है, बहुत खुश हो रही हो? समीना ने उसके लबों पर हल्का सा तबस्सुम देखकर छेड़ा।
कबल अज़ वक्त किसी बात पर क्या खुश होना। उसने फौरन संजीदगी इख्तियार की। मैं तो इस मोमबत्ती पर हंस रही हूँ जिसे मैं हर बार थाल में लगाती हूँ और ये हर बार किसी बूढ़ी औरत की तरह झुकने लगती है। उसने मोमबत्ती समीना के सामने लहराई तो वो बेइख्तियार हंस दी। तुम कब तक यूं ही मायूं वाले हुलिये में घूमती रहोगी। वो खाली बर्तन लिए किचन में दाखिल हुई थी जब समीना ने बर्तन उसके हाथ से झपट कर सिंक में रखे और फिर बाजू से घसीटती बाहर ले गई। भाई सब्र तो करो, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी वजह से अभी तक मैंने कपड़े नहीं बदले और मेरा ख्याल है अगर तुम्हें देखती रही तो इस हुलिये में सोना पड़ेगा मुझे। समीना ने उसे कमरे में धकेला और फिर दरवाजा बंद कर दिया। सुनो, कौन सा पहनूं इनमें से। जेबी ने 2 सूट निकालकर समीना के सामने लहराए। मेरा ख्याल है ये ठीक रहेगा। समीना ने स्याह जॉर्जेट के कुर्ते को मुंतखब किया जिस पर गोल्डन दुबके का नाजुक सा काम हुआ था। साथ में गोल्डन शलवार और ब्लैक ही दुपट्टा था। कपड़े बदलकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आई तो वहाँ हर किस्म का मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। लगता है खूब तैयारी की गई है। उसने फाउंडेशन क्रीम उठा ली। अरे कोई ऐसी वैसी, तुम सना को देखो तो हैरान रह जाओगी। मैरून घाघरा पहना है उसने, फुल मेकअप के साथ, बड़ी जबरदस्त लग रही है। समीना ने बाल ब्रश करते हुए कहा। फाउंडेशन क्रीम लगाने के बाद उसने हल्का सा फेस पाउडर लगाया और ब्राउन लिपस्टिक कम लिप लाइनर से होंठों को खूबसूरत शेप देकर वो आईने के सामने से हट गई थी। बस। समीना ने हैरत से उसे देखा। ना कोई आईलाइनर, ना ब्लश ऑन, ना मुस्कारा। बस यार इतना ही ठीक है। वो बैठकर समीना को मेकअप करते देखने लगी। वैसे भी अम्मा ने खास ताकीद की थी कि मेकअप चेहरे पर थोपने की जरूरत नहीं, शादीशुदा और कंवारी लड़कियों में फर्क नजर आना चाहिए। ओहो, तो अम्मा की नसीहत पर अमल कर रही हो। वाह भाई, तुम तो वाकई बहुत बीबी हो। समीना ने लिप ग्लोस होंठों पर लगाकर आखिरी बार आईने में अपना जायजा लिया। तैयार होकर वो दोनों बाहर निकली तो इस हिस्से में खासी खामोशी थी। घर के पिछली तरफ बने बड़े से बाग से ढोलक की आवाज आ रही थी और लड़कियों के गाने की भी। वो सीधी वहीं चली गईं। रोशनी का खूब इंतजाम किया हुआ था। राबिया पीले सूट में सर झुकाए सब लड़कियों के दरमियान बैठी थी। जेबी प्लीज, मैं कैमरा वहीं ड्रेसिंग टेबल के दरवाजे में भूल आई हूँ, वो उठा लाओ। भाभी उसे देखते ही बोली थी। चलो, ये एक मुसीबत रहती थी अभी। समीना के मुंह बनाने पर उसे हंसी आ गई। वो दोनों राहदारी से मुड़ी तो अचानक ही कोई सामने आ गया। वाह भाई, आज तो लोग पहचाने ही नहीं जा रहे। वो हमाद हसन था, उसकी तरफ गहरी निगाहों से देखता हुआ। जेबी ने इस बेतकल्लुफी पर खासी नागवारी से उसे घूरा था। वो मुझे सफिया भाभी से कुछ काम था, कहाँ होंगी वो। हमाद ने फौरन संजीदगी से पूछा। मालूम नहीं, हम हर वक्त उन्हें जेब में तो नहीं रखे फिरते। उसके चिढ़कर जवाब देने पर समीना ने उसे कोहनी मारी। वो पीछे बाग में है। समीना ने कहा तो वो एक तरफ होकर आगे गुजर गया। बेवकूफ लड़की, ये इस घर के खास मेहमानों में से है, सर आंखों पर बिठाया जाता है इन्हें। क्यों, घर में सोफे कुर्सियां नहीं हैं? उसके सवाल को समीना ने नजरअंदाज कर दिया था। इतना बड़ा घर है इनका, देखो तो आंखें खुली की खुली रह जाएं। होगा हमारे किस काम का। उसने दराज खोलकर कैमरा निकाला। बहन कोई नहीं है इनकी, 2 बड़े भाई हैं। लाखों का जहेज लाई हैं इनकी भाभियां। समीना बुरी तरह मुतासिर नजर आ रही थी। हमारी तरफ से अरबों खरबों का लेकर आए। समीना ने उसकी बेजारी देखी तो मजीद मालूमात देने का इरादा मुस्तरद कर दिया। कैमरा लेकर वो वापस आई तो रिजवान उन्हीं के इंतजार में था। कैमरा उसके हाथ में देते हुए जैबी ने नोट किया कि उसे देखते हुए रिजवान की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत सी उभरी थी। दुल्हा भाई, दूध पी लीजिए। हम नहीं पीते। दुल्हा के कोरे जवाब पर सब कसन से हैरत से एक दूसरे का मुंह देखा था। क्यों दुल्हा भाई? हम जानते हैं दूध का ये गिलास हमें बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने तायराना नजर हसीनों के जमे गफीर पर डाली। उफ, दुल्हा भाई तो बहुत कंजूस हैं। ज़ारा का सब्र से बुरा हाल हो गया। दुल्हा भाई जरा हौसले से काम लीजिए। फी बंदी 1000 रुपया दे दीजिएगा। सिर्फ 15-16 हजार निकलेंगे आपकी जेब से। सना ने सारा जोर सिर्फ पर दिया था। 15-16 हजार, और वो भी सिर्फ। दूल्हे के दोस्तों की हैरत के मारे आंखें फट गईं। मैं बेहोश होने वाला हूँ। दूल्हा का छोटा भाई ज्यादा ही कमजोर दिल वाकया हुआ था। कोई बात नहीं, हम आपको आपके ही मोजे सुंघाकर होश में लाएंगे। सना उनकी एक्टिंग पर चिढ़ गई थी। देखें जी, मैं वाकई दूध नहीं पीता। दूल्हे भाई ने बेचारगी से उन्हें यकीन दिलाना चाहा। अब हम दूध पिलाई की रस्म में आपको पेप्सी तो पिला नहीं सकते। समीना भुन्ना उठी। अरे बेटा, जरा सा चख लो, रस्म ही तो पूरी करनी है। किसी बजुर्ग खातून ने बड़ा मुफीद मशवरा दिया था। दूल्हे ने जैसे तैसे घूंट भरकर गिलास वापस किया और जेब की तरफ हाथ बढ़ा दिया। खुदा का शुक्र है, सब लड़कियों ने इत्मीनान का सांस लिया। हैं, उनका इत्मीनान भरा सांस दरमियान में ही दम तोड़ गया था। दुल्हा साहब ने निहायत इत्मीनान से जेब से रुमाल निकालकर मुंह साफ किया, रुमाल दोबारा जेब में घुसाया और हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। लड़कों की दबी दबी हंसी पर लड़कियां रुहांसी हो गई थीं। भाई मजीद तंग मत करें, उनके उतरे चेहरे देखकर हमारे दिल को कुछ होने लगा है। दुल्हा का भाई वाकई बहुत कमजोर दिल रखता था, सो उसकी सिफारिश पर दुल्हे ने हाथ दोबारा जेब में डाला और उस दफा उसके हाथ में हरे हरे नोट देखकर लड़कियां खुशी से झूम झूम गईं। राबिया की रुखसती के बाद हर एक पर जैसे एकदम ही थकन आन वारिद हुई थी। खवातीन एक दूसरे के कानों में मुंह दिए राबिया के ससुराल वालों पर तबसरा फरमा रही थीं। लड़कियां एक कमरे में अपनी थकन उतार रही थीं, साथ साथ बरी के जोड़ों पर बातचीत चल रही थी।
हाय खुदा के लिए कोई मुझे खाने को कुछ ला दे। ज़ारा कालीन पर फसकड़ा मारे बैठी थी। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, वापसी पर तुम्हारे लिए कुछ लेती आऊंगी। देवी कहती हुई उठ खड़ी हुई। कहाँ है आपकी वजीर खास? वो बाग में मून को देखने आई थी जब किचन की खिड़की से रिजवान की आवाज़ सुनकर ठिठक गई। कौन? ज़ेबी? भाभी भी किचन में मौजूद थी। जी हाँ, वही। उन्हें देखकर हमेशा ये एहसास होता है कि सारी दुनिया उन्हीं के कंधों पर चल रही है। रिजवान का लहजा उसे मुज़ेहका खेज लगा था। भई इसमें कोई शक नहीं, वो वाकई बहुत जिम्मेदार लड़की है, भाभी ने संजीदगी से कहा। मुझे तो पसंद है ही, अम्मी भी उसे बहू बनाने के लिए तैयार बैठी हैं। व्हाट? रिजवान इस इंकशाफ पर हैरत ज़्यादा रह गया था। ऐसी क्या बात नजर आ गई उसमें जो आप लोगों ने झटपट ये फैसला कर लिया? भाई उसमें वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो एक लड़की में होनी चाहिए। घरदारी में माहिर है, खुश इखलाक है, खिदमत गुजार है, शक्लो सूरत की भी अच्छी है, और क्या चाहिए? भाभी ने हैरत से पूछा था। भी दीवार के साथ लगकर खड़ी खिड़की के करीब खिसक गई थी। उसकी खिदमत गुजारी अम्मी को और घरदारी आपको मुतासिर कर सकती है भाभी। मैं अपनी बीवी में जो खूबियां देखना चाहता हूँ उनमें से कोई एक खूबी भी जेबी में मौजूद नहीं है। रिजवान के तलख लहजे पर बाहर खड़ी जेबी अपनी जगह खड़ी रह गई थी। क्यों? ऐसी कौन सी खूबियां चाहते हैं आप अपनी बीवी में? भाभी ने तंजिया लहजे में पूछा। देखिए भाभी, मैं सिर्फ एक इंजीनियर हूँ, लेकिन सिर्फ चंद माह बाद मैं अपनी कंपनी की तरफ से कनाडा जा रहा हूँ, और उसके बाद आप जानती हैं मेरा स्टेटस कितना हाई हो जाएगा। उस जेबी जैसी लड़कियां हाई सोसाइटी में मूव नहीं कर सकती। ये सिर्फ हांडी चूल्हा या घर की सफाई सुथराई कर सकती हैं, और बस। जेबी को लगा उसके आसपास की जमीन हिल रही है। और आप खुद सोचे भाभी, ये सब काम तो चंद सौ रुपयों के अवध मुलाजिम भी कर सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? नौकरी और घरदारी में कोई फर्क नहीं है? भाभी के लहजे में कड़वाहट घुल गई थी कि वो खुद भी मुकम्मल तौर पर हाउस वाइफ थी। मुझे मालूम है आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर मैं बहरहाल ऐसा ही समझता हूँ। मैं ऐसी बीवी चाहता हूँ जो वेल ड्रेस हो, हर नए फैशन से आगाह हो, खुद को संवारना जानती हो। किसी महफिल में मेरे साथ जाए तो मैं सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर उसके साथ चलूं। और कल देखा था आपने, जेबी को लगता ही नहीं था कि वो शादी के फंक्शन के लिए तैयार हुई है। उसके वालिदैन ज्यादा फैशन पसंद नहीं करते, इसीलिए वो इस कदर सादा नजर आ रही थी। भाभी ने कमजोर लहजे में उसका दिफा किया था। यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां मुसलसल वालिदैन के दबाव में रहती हैं। उन्हें ना शख्सी आज़ादी हासिल होती है ना माली, और जब उन्हें ये सब मिलता है तो वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकती। या तो अपने खोल में सिमट कर रह जाती हैं, या फिर इनकी अयाशियां हद से बढ़ जाती हैं। बस करो रिजवान, तुम मुतवस्सित घरानों की लड़कियों में इस तरह ऐब निकाल रहे हो जैसे तुम कोई जद्दी पुश्ती लैंड लॉर्ड हो। भाभी के लहजे में गुस्सा झलक रहा था। जद्दी पुश्ती तो नहीं, अलबत्ता मुस्तकबिल का लैंडलॉर्ड जरूर होगा। आप अम्मी से कह दें जेबी को छोड़ें, सना के बारे में सोचें। उसमें ना सिर्फ मेरे मतलूबा औसाफ हैं बल्कि माली लिहाज से भी मजबूत बैकग्राउंड रखती है। रिजवान बोल रहा था, मगर जेबी की सब्र की हद यहीं तक थी। वो सरपट भागती हुई कमरे में आकर बंद हो गई थी। इतनी जिल्लत उसका बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। क्या समझती थी मैं फुप्पो और भाभी की खिदमतें करके उन्हें राम कर लूंगी और रिजवान उनकी मर्जी पर फौरन सर झुका देगा? नहीं, ये कोई नापसंद खाना नहीं था कि जिसे भाभी के कहने पर वो फौरन खा लेता। ना ही ये फुप्पो का बेवक्त बाजार जाने का ऑर्डर था कि वो अपने मूड की परवाह किए बगैर बाजार चल देता। ये उसकी पूरी जिंदगी का मामला था और उसे पूरा हक था फैसला करने का। मगर उसने ये सब क्यों कहा? वो तकिए में मुंह दिए फूट फूट कर रो दी थी। मेरे माँ बाप की जायज पाबंदियों को मेरा ऐब बना दिया। मैं सना की तरह डेकोरेशन पीस बनने की सलाहियत नहीं रखती। मैं सिर्फ हांडी चूल्हा कर सकती हूँ, सिर्फ झाड़ू पोछा कर सकती हूँ। कि मेरी तरबियत में बस यही कुछ शामिल है? पागल थी मैं। ये मैं भूल गई थी कि ये दौलत और हुस्न पर मरने वाली दुनिया है। मेरी जैसी मुतवस्सित घराने की लड़कियां क्लर्क और स्कूल मास्टरों के घर चला सकती हैं, और बस उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये सब मेरे अपने अमाल की सजा है। मैंने सबके साथ खेल खेला है, नताइज की परवाह किए बगैर। मैंने बच्चों के बहते आंसू साफ किए क्योंकि उसमें मेरी अपनी गर्ज शामिल थी। मैंने बुजुर्गों की खिदमत की तो अपने मुफाद की खातिर। जब नीयत ही खोटी तो यही हासिल होना था। क्या होता अगर खुद को सिपर साबित करने की कोशिश ना करती? अम्मा कुछ रातें और जाकर गुजार लेती, सकीना खैला बेचारी कहकर मेरी खराब किस्मत पर इजहार अफसोस कर लेती। क्या होता अगर मेरी हम उम्र तमाम लड़कियां ब्याही जाती? कम अज कम आज खुद से शर्म तो ना आ रही होती, खुदा की नाराजगी तो ना सहनी पड़ती। उसने दुपट्टे से आंखें और चेहरा खुश किया। उस रोज जब छोटी फूफो ने सर दबाने को कहा था तो मैं हंसते मुस्कुराते उनका सर दबाने लगी थी, पर दिल में तो एक ही ख्वाहिश उभर रही थी कि गला ना दबा दूं। और जब सफिया भाभी के बेटे ने मेरे सामने से सालन की प्लेट अपनी तरफ खिसका ली थी, जबकि मुझे बेतहाशा भूख भी लगी थी, तो मैंने मुस्कुरा कर कहा था चलो तुम खा लो, जबकि दिल में ताव खाकर चीखी थी मोटा पेटू, अल्लाह करे हजम ना हो। हाय, अब मैं क्या एक एक से जाकर माफी मांगू? अपनी गलती का एहसास होते ही वो बेचैन हो गई थी। लेकिन ये सब लोग क्या सोचेंगे, और मैं क्या कहकर माफी मांगूंगी? वो उठकर कमरे में चक्कर काटने लगी। अल्लाह मियाँ जी, बस एक बार माफ कर दें, आइंदा कभी ऐसा दोगलापन नहीं करूंगी, भले सारी उम्र कमारी बैठी रहूं। वो फौरन सजदे में गिर गई थी। रिजवान की बातें उसके सहन से एकदम ही गायब हो गई थी। बस ये एहसास दिल में जागती था कि वो गुनाहगार है।
लिहाजा कितनी ही देर वो सजदे में गिरी आंसू बहाकर अपने गुनाह की माफी मांगती रही और इस वक्त चौंकी जब मोन धड़ धड़ दरवाजा बजा रहा था। क्या है? उसने उठकर दरवाजा खोला। आपी, लाइट तो जलाएं। मून के कहने पर उसे अंदाजा हुआ कि रात हो चुकी थी और कमरे में घुप अंधेरा था। उसने आगे बढ़कर लाइट जला दी। अब्बा कह रहे हैं अपना सामान पैक कर ले, हम सुबह रवाना हो जाएंगे। मून उसे पैगाम देकर भाग गया था। उसने बाथरूम में जाकर चेहरे को खूब धोया कि रोने के सब आसार मिट जाएं और फिर तौलिए से चेहरा खुश करके बाहर निकल आई। राहदारी से मुड़ते हुए वो किसी से टकराते टकराते बची थी। उसने एक तरफ होकर गुजरना चाहा, सामने वाला खिसक कर सामने आ गया। वो दूसरी तरफ बढ़ी मगर वो दीवार बना जूं का तूं फिर सामने खड़ा था। कौन बदतमीज है ये? उसने राहदारी के आखिरी सिरे पर लगे बल्ब की रोशनी में सामने वाले को पहचानना चाहा। वो हम्माद हसन था, सफिया भाभी के ताया की साली का। अनजाने क्या क्या। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे नहीं मालूम सफिया भाभी कहाँ है। वो गर्दन मोड़कर बाग की तरफ देखने लगी। जी, मैंने कुछ और पूछना था। फिर कभी पूछ लीजिएगा, मुझे जरा काम है। उसने मसरूफ से अंदाज में कहकर आगे बढ़ना चाहा मगर रास्ता अभी भी ब्लॉक था। प्लीज, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। वो सतून पर हाथ टिकाकर मजीद फैल गया। जी पूछिए। उसने जान छुड़ानी थी सो फौरन कह दिया। विल यू मैरी मी? मुझसे शादी करोगी? उसका सवाल ठक से उसके कानों से टकराया था। जी? जेबी ने उसे नीम तारीकी में घूरना चाहा। क्या हुआ, इंग्लिश समझ नहीं आती? नहीं। उसके मुस्कुराते लहजे पर वो जल गई थी। कोई बात नहीं, निकाह उर्दू में पढ़वा लेंगे। उसने गोया मसला हल कर दिया। देखिए, मैं वाकई आपके बारे में संजीदा हूँ। उसकी खामोशी पर हमाद ने संजीदगी से कहा। ये मिल ऑनर। उसने सर उठाकर इसे देखा जो बड़ी ईमानदारी से उसके सामने खड़ा अपने जज्बों का इजहार कर रहा था। हमाद साहब, मैं एक मामूली से क्लर्क की बेटी हूँ और मेरा 5 मरले का घर तंगो तारीख गलियों में वाकिया है। उसका सर उठा हुआ और लहजा हर किस्म की महरूमी से पाक था। मैंने ब्याह करके आपके घर नहीं जाना, आप ब्याह करके मेरे घर आएंगी। हमाद को उसकी नाकिस मालूमात पर अफसोस हुआ। मैं लाखों का जहेज लेकर नहीं आऊंगी। तो गोया आप हमारे यहाँ पर आने पर रजामंद हो रही हैं। हमाद उसके जुमले को हंसी में उड़ा गया था। मैं घर के सब काम अपने हाथों से करती हूँ। जी हाँ, मेरी भी यही मजबूरी है। कोई दूसरा अपने हाथ देने पर राजी ही नहीं होता। वो किसी तौर संजीदा नहीं हो रहा था। सेबी की आंखें भर आईं। मैं अपर क्लास लड़कियों की तरह उल्टा सीधा फैशन करके महफिलों में नहीं जा सकती। हमाद ने देखा आंसू एक लकीर की सूरत उसकी आंखों से बह निकले थे। महजेब, आप सिर्फ मेरे दिल में रहेंगी या मेरे घर में? हमारी सोसाइटी में हर लड़की शम्मा महफिल बन सकती है मगर मुझे एक घर वाली की जरूरत है जो अपने हाथों से खाना पकाए और अपने हाथों से खिलाए। जब मैं बाहर की दोगली दुनिया से निकलकर घर में कदम रखूं तो उसकी बेरिया मुस्कुराहट मेरी सारी थकन समेट ले। जो खुद को संवारे तो मेरे लिए, वो कहता रहा और जेबी रुख मोड़कर सुरूम के पास आ खड़ी हुई। क्या मेरी तौबा इतनी जल्दी कबूल हो गई? उसने तारों भरे से आसमान को देखा। आंसुओं से ताकतवर चीज और कोई नहीं। कोई भी मौका हो सारे बंद तोड़ देते हैं। उसका चेहरा भी आंसुओं से भीग गया था। क्यों? ये तो वो भी नहीं जानती थी। शायद खुदा के हजूर तौबा कबूल हो जाने की खुशी थी या फिर ये खुशकुन एहसास उसे रुला गया था कि इस दुनिया में कोई है जो अपने जज्बों की सच्चाई के साथ उसका तलबगार है। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी? वो ऐन उसके पीछे आ खड़ा हुआ। जेबी ने फौरन आंसू पोंछ डाले। कुछ तो बोलिए या फिर मैं ये समझ लूं कि खामोशी इकरार का दूसरा नाम होती है। अब के जेबी दानिस्ता तौर पर खामोश रही थी। अलबत्ता उसके लबों की धीमी मुस्कान उसके लबों की धीमी मुस्कान ने हमाद को बहुत कुछ समझा दिया था। उसने इत्मीनान भरा सांस लेकर आसमान पर अधूरे चांद को देखा। ये चांद अधूरा है। उसके कहने पर जेबी ने सर उठाकर अधूरे चांद पर नजरें गाड़ दी। पूरा चांद इंशाल्लाह हम अपने घर में देखेंगे। हमाद के लहजे में यकीन था। चांद अधूरा कब है? ये तो पूरा हो गया है, अभी इसी लम्हे। उसने दिल ही दिल में सोचते हुए अपने साथ खड़े उस शख्स को देखा जो उसके ख्वाबों का अमीन था।